Good morning, students. Welcome to the new lecture of Transportation Engineering 2. Today we will continue with the numerical part which we saw in last lecture. We will continue the same numericals on tractive effort of locomotive. Last time we saw two different types of numerical. Today we will continue the same numerical types. We will see another two types of numerical. Last time also we saw two types of numerical. Today we will also see two types of different numerical which can come in exam. The numerical which is in front of your screen is important numerical because this type of numerical once asked in exam in winter 18, I think winter 18, almost similar question asked in exam. So let's see this type of numerical. How can we solve this type of numerical? You all remember the formulas. We have studied that all the formulas about tractive effort and all, in which we saw friction resistance, oscillating resistance, resistance due to curve, resistance due to gradient. Okay, we will continue the same numerical which we saw last time. Okay, let's start. See this question which is in front of your screen. A locomotive, see this question, a locomotive on a MG track means meter gauge track, has 3 pair of driving wheels. Okay, 3 pairs of driving wheel, each carry 12.27 ton, full stop. What maximum load can it draw on a level track with a curvature of 2 degree at a speed of 48.3 kmph? Okay, this is the first part of numerical. Let's continue the numerical again. What speed can be attained by a train carrying the same load on a up gradient of 1 in 350? See again in this question, it has asked two answers. Okay, first is what maximum load it can draw. In first part it asked about what maximum load it can draw on a level track, okay, with a curvature of 2 degree at a speed of 48.3. In next part it asked about the speed it can attain while if the train moves on a gradient which is of course a rising gradient of 1 in 350. So how can we solve this question? First of all, let's understand the numerical again. Let's read it one more time. A locomotive on a MG track, meter gauge track, has a 3 pair, very important word, 3 pair. It is most important thing is understanding the question in any numerical. So it said 3 pairs of driving wheel. 3 pairs means what? See here, this is the 3 pairs of driving wheel. This is one pair, for example this is the wheel, and what is, I told you about this rod, this is called axle. The axle is nothing but a rod which connects the two wheels. So this is the axle. Okay, this is one pair, this is another pair, this is another pair. So 3 pairs are there. Okay, 3 pairs of driving wheel, this is called axle. This part which connects the two wheels is called axle. So 3 pairs of driving wheel means if there are 3 pairs means it is also you can understand that if 3 pairs are there means 3 axle are there. This is one pair, this is another pair, this is another pair. So how many axle are there? 1, 2 and 3 axles are there. Okay, number of axles are 3. If 3 pairs are there, number of axles are 3. If 4 pairs are there, then number of axle would be 4. So you have to understand the language of question. So 3 pairs of driving wheel means 3 number of axles are given. Okay, and each carry means each axle carry 12.27 tons. Okay, each axle carry 12.27 tons. Okay, full stop. Then what maximum load can it draw on a level track with a curvature of 2 degree at a speed of 48.3 kmph? So curvature means train is moving on a curve of 2 degree. Okay,
while calculating the total resistance, you have to add this curvature part also. Okay, this curvature part also. So while solving this numerical, stepwise you have to move. First thing you have to determine is the total load on driving wheel. Last time we have done this, the same thing. While solving this numerical, you have to go step by step. So the first thing you have to determine is the total load on a driving wheel. What is the total load on driving wheel? How can you find out? I told you last time, number of axle multiplied by load on each axle. Number of axle multiplied by load on each axle. So number of axle here are 3 and load on each axle is 12.27. So if you multiply 3 into 12.27, the answer would be 36.81 ton. What is this 36.81 ton? Is the total load on driving wheel. Means if you add these 3 pairs of wheel, total load on 3 pairs of wheel, you will get 36.81 tons. Okay, total load on driving wheel. After that, you have to determine the hauling capacity. This is the answer of your this hauling capacity. How you will find hauling capacity? I told you last time, just multiply the total load on driving wheel by 1 by 6. So again, if you multiply 1 by 6 into 36.81, you will get the hauling capacity. What is this 1 by 6? 1 by 6 is a coefficient of friction. 0.166 also you can write. In place of 1 by 6, you can write 0.166 also. So you just have to multiply the total load on driving wheel by coefficient of friction. This 1 by 6 is coefficient of friction and this is load on driving wheel. So if you multiply 1 by 6 to 36.81, you will get the answer of 6.135 tons. This is called the hauling capacity of locomotive. This is called the hauling capacity of locomotive. So hauling capacity is 6.135 tons. Okay, so next thing you have to do is to find out what basically the question is asking you. What basic thing it is asking you? It is asking how much, what is the maximum load can it draw from a level track? What is the maximum load? What is the maximum capacity of locomotive? You can say that how much load the locomotive can pull. Basically, how much load the locomotive can pull. It means it is asking about the weight of train. Okay, of course now it is asking about the weight of train. How much is the weight of train can locomotive pull on a straight level track? So it is asking about the weight of train. What maximum load can it draw on a level track? It means it is asking about the weight of train. Okay, so after calculating the hauling capacity, what you can do, you can find out the W value. W here is weight of train. So the simple formula last time we saw, total resistance. Total resistance is equal to resistance due to friction. This is 0.0025 is W is resistance due to friction plus oscillating resistance 0.000015 V square W. We have studied about the oscillating resistance. You have to add friction plus oscillating plus curve resistance. This is important thing. Curve resistance you have to add. Okay, because train is moving on a 2-degree curve. Okay, so you have to add curve resistance also. If you ask me about the another resistance called speed resistance, here also we have not added that resistance because in question it has not said anything about the speed resistance or air velocity. Okay, or exposed area. It has nothing is mentioned about the exposed area or wind velocity. That's why we have not considered that resistance due to speed of train. So we just have 3 types of resistance here. Total resistance is equal to friction plus oscillating plus resistance due to curve. Why we have mentioned resistance due to curve here? Because in question it has asked about the curvature also. It said about the curvature also. That's why we have added this curvature here. So the total resistance would be equal to 0.0025 W plus 0.000015 V square W plus 0.003. here remember here 0.003, not 0.004. 0.004 we put if it said about the BG track. BG track means broad gauge track, but
In question it has mentioned about the meter gauge track, that's why we have taken 0.003. okay, we have not taken 0.004, we have taken 0.0003 because it is a meter gauge track. Remember that formula in which for BG track it is 0.004, for MG track it is 0.0003, for narrow gauge it is 0.0002 in W into D. This was the formula of resistance due to curvature. So we have to take MG track, that's why we have put 0.0003 in W into D. okay, W, what is W? Weight of train, and D is degree of curve. So this is resistance due to curve. So let's put the values here. Resistance, again I told you last time I told you about the hauling capacity is almost equal to the total resistance. okay, total tractive effort is equal to hauling capacity of locomotive. Remember this thing, hauling capacity is almost equal to the total resistance, or in place of total resistance you can say tractive effort of locomotive. okay, so if you put here the hauling capacity, which is tractive resistance, so the value is 6.135, so 6.135 tons, okay, is equal to friction resistance. For first you have to take friction resistance, so 0.0025 into W. W is the unknown value which you have to determine. okay, W plus 0.000015 V square. What is V? V is nothing but the speed of train, which is also mentioned in the question, which is 48.3. okay, so V is 48.3 square into W. W is again weight of train plus resistance due to curve. You have to put the values all here, 0.0003 into W into 2. What is 2? Where this 2 comes from? 2 is the degree of curve. This D is nothing but 2, which is also mentioned in the question, 2 degree. That's why we have taken 2 here. So after putting all the values, you will get the answer of, after solving this equation, you will get the answer of W is equal to 930 tons. okay, you will get the answer of 930 tons. okay, so the first part in the numerical was asking about the total load the locomotive can pull, or maximum load that locomotive can pull. So the answer is, the weight of the train is 930. It means it can pull up to 930 tons. okay, this was the answer of first part of numerical. In second part, it has asked about the speed can be attained by a train carrying the same load on up against a gradient of 1 in 350. It means if a train is moving on a gradient of 1 in 350, what would be the speed of train? It has not asked about the reduction in speed. okay, last question it was asked about the reduction in speed, but in this question it is just asking about the at what speed the train will move on a 1 in 350 gradient. So let's solve this equation also. How can you solve this? Similar, almost similar to the last question. okay, almost similar to the last question. Here also on gradient. okay, on gradient, now you have to consider gradient also, because it has mentioned here the gradient also of 1 in 350. That's why you have to consider on a gradient. So total resistance would be equal to friction resistance, which is 0.0025 W, plus oscillating resistance, which is 0.00015 V square W, plus degree of curve. okay, here degree of curve you have to add also. okay, 0.003 W into D, plus this is the new part, which is resistance due to gradient. You have to add this also, resistance due to gradient. okay, this is the new part, resistance due to gradient, resistance due to gradient. In second part of numerical, it is basically asking about the speed of train. okay, it has given all the values, you just have to find out the value of V. So if a train is moving on a gradient, the most important thing which you have to remember here is you have to mention about the curve also. okay, for example, many students can get confused here that why we have taken this curvature part also, because in question main question it has mentioned about the curvature of 2 degree. That's why we have to consider this curvature also on a gradient. It means train is moving on a gradient
during a curve. Okay, curve is also there. Simultaneously train is moving on a curve with a gradient. Okay, train is moving on a curve with a gradient. Okay, you have to put this curvature value also, the formula of curvature also in gradient part. Okay, so you have to put all the values. Total resistance again it will be equal to, so the total resistance is equal to 0.0025 W, which is friction resistance, plus 0.00015 V square W, which is oscillating resistance, plus 0.0003 W into D, which is resistance due to curve, plus resistance due to gradient, which is W into G. Okay, G into W or W into G. So you have to just put all the values here. So as we know, total resistance, which is equal to hauling capacity, which is the value which we have determined is 6.135 tons. So total resistance here is 6.135 is equal to 0.0025 in place of W. Now in place of W you can write 930, because we have already determined the weight of train here. So weight of train which we have already determined is 930 tons. So 0.0025930 930 W, okay, plus 0.000015 V square. Now V square is the actual thing which we have to determine, because it has asked about the speed. What is the speed of train when the train moves on a gradient of 1 in 350. So you have to determine the V value. That's why V is unknown here. So V square into W, again W is 930. We have determined the W value of W. Value of W is 930. W is weight of train. So weight of train is 930. So value of W you can put 930 here, plus 0.0003 W into D. So you know the value of W and D, 930, and what is the value of D? D is degree of curve, which is 2 degree. Okay, already mentioned in the question. Plus what is the value of G? G is already mentioned in the question, because see here, gradient of 1 in 350. So the value of G is also mentioned in the question. So you can write down 1 by 350. Okay, this is the value of gradient into 930. 930 again is the weight of train. So after solving this equation, what is the main thing you have to determine? What is unknown here? Unknown is V. V is speed. So after solving this equation, you will get the speed of train is 20.64 kmph. So the speed of train is 20.64 kmph. Okay, you have to remember, you don't have to find reduction of speed, you just have to find the speed of train if it moves on a gradient of 1 in 350. In last numerical it has asked about the reduction in speed, but in this case it has only asked about the speed of train when it moves on a gradient of 1 in 350. You don't have to find out the reduction in speed. Okay, so what would be the reduction? If it would have asked about the reduction, how can you find out about the reduction? You just have to minus, what is the value of actual speed was 48.3, you just have to minus 20.64. okay, you will get reduction in speed, but you don't need to determine that, because in question it has asked about only the speed of train when it moves on a gradient. Okay, so आंसर आ गया है इसका 20.64 kmph. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन आपको समझा है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पूरा समझा है. अगर नहीं समझा है तो आप पूछ लेना कुछ पार्ट, अगर आपको नहीं समझा है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. इसमें सिंपल भी उतना ही है जितनी, क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उसका मतलब ये है कि आपको उसमें सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी. जितना शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो उतना ही टफ होता है, और जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही आसान होता है. इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, अब तक बहुत पहले पूछा था इस तरह का क्वेश्चन, बट आपको इसको भी आपको आना चाहिए सॉल्व करते हुए. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कैलकुलेट द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. इसका मतलब आपको सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या आपको समझ में आया ये लाइन से कि आपको क्या निकालना है?
कैलकुलेट द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट. स्टीपेस्ट वर्ड को भूल जाओ अभी. यू हैव टू कैलकुलेट ग्रेडियंट. ओके, you have to calculate gradient from the following data. So let's see what are the datas. number of wagons दिया है 26. number of wagons दिया है 26. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है weight of one wagon. ओके, weight of one wagon दिया है 20 tons. ठीक है. उसके बाद रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन दिया है 2 kg पर टन. उसके बाद दिया है स्पीड ऑफ ट्रेन 50 kmph. आफ्टर दैट वेट ऑफ लोकोमोटिव विथ टेंडर विथ इंजन, यानी इंजन लोकोमोटिव के और इंजन का वेट दोनों का ऐड करके दिया है 180 टन्स. उसके बाद ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ लोकोमोटिव जो कि दिया है 15 टन्स. उसके बाद रोलिंग रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला आपको दिया है 3 kg पर टन. ओके. उसके बाद वेलोसिटी रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी आपको जो फार्मूला है वो मेंशन है इसमें 0.0016 v² kg पर टन वेट ऑफ ट्रेन. ओके, ये पूरा डेटा इसको लिख लीजिए. पहले आप पूरा डेटा लिख लो. ठीक है, पूरा डेटा लिख लो. ठीक है, तो ये सारी जो डेटा है आपको मेंशन किया गया है क्वेश्चन में. तो सबसे पहले एक एक डेटा को मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है. नंबर ऑफ वैगन्स. सबसे पहले वैगन वर्ड का मीनिंग क्या होता है. वैगन का मीनिंग होता है जो आप देखते होंगे गुड्स ट्रेन जो होती है ना, फ्रेट ट्रेन जिसको बोलते हैं, जो कि मटेरियल ले जाने के काम आती है. जिसे आप मालगाड़ी भी बोलते हैं, है ना, जो मटेरियल मूव करने के लिए यूज़ करते हैं. जो उसके डब्बे होते हैं जो कि ऊपर से ओपन होते हैं, है ना, तो उसे बोला जाता है वैगन. यानी कि एक गुड्स ट्रेन की बात हो रही है इसमें. ठीक है. तो नंबर ऑफ वैगन्स जो है, नंबर ऑफ वैगन्स मीन्स जो जितने भी उसमें डब्बे हैं पीछे, वैगन्स जो कि ओपन होते हैं ऊपर से, उनका नंबर दिया गया है 26. यानी कि एक इंजन के पीछे 26 वैगन्स है, 26 वो डब्बे है. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो दी गई है वेट ऑफ वन वैगन, यानी कि एक डिब्बे का जो वेट है, एक वैगन का वेट है वो दिया गया है 20 टन्स. ओके. थर्ड थिंग विच इज़ गिवन इज़ रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन. नाउ रोलिंग रेजिस्टेंस में कंफ्यूज मत होइए, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के. ओके, ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो रोलिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको. रोलिंग रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट रोलिंग फ्रिक्शन है, या फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आप उसको बोल सकते हो. ठीक है, जो कि आपको दिया गया है, जिसका वैल्यू दिया गया है 2 kg पर टन. ओके. तो रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन यहाँ पे मेंशन है. वर्ड पे ध्यान दीजिए. रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन दिया गया है 2 kg पर टन. ओके. उसके बाद स्पीड दी गई है ट्रेन की 50 kmph. उसके बाद दिया गया है वेट ऑफ लोकोमोटिव विथ इंजन, यानी कि लोकोमोटिव का जो वेट है बेसिकली वो दिया गया है 180 टन्स. ठीक है. उसके बाद ये है ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ लोकोमोटिव. अब एक चीज़ याद रखिए, ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ लोकोमोटिव, यानी कि इसमें कंफ्यूज मत होइए. ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ लोकोमोटिव मतलब टोटल रेजिस्टेंस. इसको आप हॉलिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हो, है ना, इसको आप हॉलिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हो ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ लोकोमोटिव को, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 15 टन्स. उसके बाद आपको एक चीज़ और दी गई है यहाँ पे कि रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव. ये देखिए यहाँ पे रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन तो दिया गया था, साथ में रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव भी दिया गया है, जिसका वैल्यू दिया गया है 3 kg पर टन. इसको कैसे निकालना है वो देखते हैं आगे. 3 kg पर टन. रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन दिया था 2 kg पर टन, और जो रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव है 3 kg पर टन. ठीक है. उसके बाद एक और चीज़ मेंशन है यहाँ पे, वेलोसिटी रेजिस्टेंस. इसमें भी कंफ्यूज मत होइए. वेलोसिटी रेजिस्टेंस का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑसिलेटिंग रेजिस्टेंस के. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. वेलोसिटी रेजिस्टेंस का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑसिलेटिंग रेजिस्टेंस का, वहाँ पे लिख लीजिए. ठीक है. इसकी भी वैल्यू देखिए, एक फार्मूला दिया गया, फार्मूला थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया. ये क्वेश्चन में दिया गया, आप इसके हिसाब से ही करेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो क्वेश्चन में मेंशन है आप उसके हिसाब से करेंगे. तो जो क्वेश्चन में दिया गया है 0.0016 v² इंटू, देखिए यहाँ पे v² के बाद भी वैल्यू कुछ लिखा है यहाँ पे, kg पर टन वेट ऑफ ट्रेन. ठीक है ना, kg पर टन वेट ऑफ ट्रेन. इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम देखते हैं आगे. तो इतना सारा डेटा आपको दिया गया है और उसने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पूछा है, दैट इज़ ग्रेडियंट. ओके, सो वी विल फाइंड द ग्रेडियंट ऑल्सो. फर्स्ट यू हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप. So first thing you have to determine is
टोटल वेट ऑफ ट्रेन, आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हो W की वैल्यू। आपको पता ही है हर फ्रिक्शन के फॉर्मूले में W आता है, तो W तो निकालना आपके लिए कंपलसरी है। सो यू कैन फाइंड आउट दिस W वैल्यू वेरी इजीली बिकॉज सी इन क्वेश्चन व्हाट इज़ एक्चुअली W, टोटल वेट ऑफ ट्रेन। सो टोटल वेट ऑफ ट्रेन कैसा निकालेंगे, वेट ऑफ वैगन, यानी कि जितने भी डिब्बे हैं पीछे, जितने भी वैगन है ट्रेन के पीछे, उसका वेट प्लस वेट ऑफ लोकोमोटिव, यानी कि पूरी ट्रेन का वेट निकल गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वेट ऑफ वैगन हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखिए वेट ऑफ वैगन आपको निकालना है, यानी पूरे डिब्बों का वेट। कितने डिब्बे हैं, 26, और एक डिब्बे का वेट कितना है, 20। तो क्या करना है आपको, सिर्फ 20 को मल्टीप्लाई करना है 26 से ख़त्म, वेट ऑफ वैगन आपको मिल जाएगा। सिंपल, 26 इंटू 20, 26 क्या है, नंबर ऑफ वैगन, और 20 क्या है, एक वैगन का वेट। तो इससे आपको वेट ऑफ वैगन्स, पूरे वैगन्स का वेट मिल जाएगा, है ना। जितने भी वैगन से मल्टीप्लाई करोगे एक वैगन के वेट से, तो आपको टोटल वेट ऑफ वैगन्स मिल जाएगा, जितने भी डिब्बे हैं उनका टोटल वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ वैगन्स तो मिल गया, प्लस वेट ऑफ लोकोमोटिव जो कि ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्ट ही गिवन है। देखिए वेट ऑफ लोकोमोटिव विथ इंजन के साथ में जो दिया है 180 टन्स, तो आपको सिर्फ इसको ऐड करना है प्लस 180, तो ये आपका आ गया 700 टन्स। आपने टोटल वेट ऑफ ट्रेन निकाल लिए 700 टन। बहुत ही सिंपल, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दोनों वैल्यू ही दी गई है, वेट ऑफ वैगन भी दिया गया था और वेट ऑफ लोकोमोटिव भी दिया गया था, ठीक है। वैगन का वेट निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ वैगन से को मल्टीप्लाई करना पड़ा एक वैगन के वेट से, ठीक है। सो द आंसर ऑफ टोटल वेट ऑफ ट्रेन इज़ 700 टन्स। आपने टोटल वेट ऑफ ट्रेन निकाल लिया। पहली स्टेप इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह का भी आ सकता है, इसके अलावा और कोई इसमें वैरायटी नहीं होगी, सिर्फ ये जो मैंने बताया उतना ही आएगा। तो टोटल वेट ऑफ ट्रेन आपने निकाल लिए 700 टन। अब उसके बाद देखिए अगली चीज़ आप क्या निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए हमने रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन्स निकाला। ध्यान से देखिए, हाँ, रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन्स, ये वर्ड को याद रखिए, यहाँ पे वैगन्स भी मेंशन है क्वेश्चन में। देखिए रोलिंग रेजिस्टेंस वैगन के लिए अलग है, रोलिंग रेजिस्टेंस लोकोमोटिव के लिए अलग है। तो रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन, रोलिंग मतलब मैंने जैसा आपको बताया फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ही होता है ये। इसके लिए उसने ऑलरेडी दिया गया था, उसने बोला है कि 2 kg पर टन, ठीक है ना, 2 kg पर टन। 2 को मल्टीप्लाई करना है बस किससे, वेट ऑफ वैगन से, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेट मेंशन किया गया है, ये वैगन का वेट है, kg पर टन जो है ना ये वैगन का वेट है पर टन, ठीक है ना। तो हमने वेट ऑफ वैगन्स कितना था हमारा 26 मल्टीप्लाइड बाय 20। सो आपको रोलिंग रेजिस्टेंस पूरा निकालना है kg में, तो कैसा निकलेगा वो, सिंपल 2 इंटू 26 इंटू 20। 2 क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए मेंशन है 2 kg पर टन, 2 kg पर टन, इसलिए हमने यहाँ पे ये 2 की वैल्यू ली है, ठीक है। उसके बाद ये जो 26 इंटू 20 है ये वेट ऑफ वैगन है, ठीक है, टन्स में, वेट ऑफ वैगन्स है टन्स में, ठीक है, इसलिए हमने इसको 26 इंटू 20 किए। तो जो आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर जो निकलेगा वो kg में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसने kg पर टन दिया था, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 2 kg पर टन है ना, 2 kg पर टन, इसलिए इसको हमने इस तरीके से निकाले और आंसर आपका आएगा वो kg में आएगा, टन्स में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है 2 kg पर टन। तो आपने क्या किए, जो टन्स में आंसर आ रहा था उसको मल्टीप्लाई किए 2 kg से, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1040, ठीक है, 1040 kg आ रहा है, ठीक है, रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन्स। उसके बाद रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव, ये भी दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे वर्ड चेंज हुआ, रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव हो गया अब ये। तो इसके लिए भी देखिए क्वेश्चन में दिया था रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव इज 3 kg पर टन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पर टन है इसकी जगह आपको लेना पड़ेगा वेट ऑफ लोकोमोटिव को, ठीक है, वेट ऑफ लोकोमोटिव को, जो कि कितना था 180। तो आपको क्या करना है, बस ये 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, वेट ऑफ लोकोमोटिव से, जो कि था 180। तो 3 मल्टीप्लाइड 180 करोगे तो आंसर आ जाएगा 540 kg। ये आ गया आपका रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव। इस तरह के क्वेश्चन को आपको इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन निकाला, रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव निकाला। अब ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही ट्रेन का पार्ट है।
तो इसलिए हमने क्या किए, टोटल रेजिस्टेंस निकाले, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस आप इसको बोल सकते हो, टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि वो एक ही ट्रेन का पार्ट है ना दोनों। तो क्या करोगे आप, देखिए यहाँ पे सिंपल जो रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन्स है 1040 प्लस रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव, ये दोनों को ऐड कर देंगे सिंपल। तो आंसर जो आएगा 1580 kg आएगा, kg में आएगा, तो आपको उसको टन्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 1.58 टन्स टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल फ्रिक्शन। ध्यान से देखिए, इसको आप फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, ये रोलिंग की जगह आप फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी इसको बोल सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। टोटल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस या टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस जो आ गया वो आ गया 1.58 टन्स, ठीक है। उसके बाद इसको आगे बढ़ते, नेक्स्ट चीज़ जो आपको दी गई थी, देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया था वेलोसिटी रेजिस्टेंस, मैंने बोला था इसकी जगह आप ऑसिलेटिंग रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो, और इसका फार्मूला उसने अपने तरफ से दिया था 0.0016, ठीक है ना। जो जनरल उसका फार्मूला वो अलग था, वो वैल्यू आपको याद रखना है, लेकिन अगर ये इस तरीके से अगर दिया है जिसमें मेंशन है फार्मूला, तो आपको यही लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, वेलोसिटी रेजिस्टेंस जो कि ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में, उसे भी आपको निकालना पड़ेगा। उसका फार्मूला दिया गया था आपको, ये देखिए फार्मूला दिया गया था 0.0016 v² इंटू kg पर टन वेट ऑफ ट्रेन, इट इज़ नथिंग बट W, ओके, इट इज़ नथिंग बट W। सो उसका फार्मूला जो दिया गया उसको सेम लिखेंगे 0.0016 v² W। v यहाँ पे क्या है, जैसे कि ऑसिलेटिंग वाले फार्मूले में v की जगह आपको स्पीड ऑफ ट्रेन लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 0.0016 मल्टीप्लाइड बाय v, जो कि स्पीड ऑफ ट्रेन है 50 kmph, यानी कि 50² मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ट्रेन, जो कि आपने 700 टन्स आपका आंसर आया है। ये देखिए वेट ऑफ ट्रेन आया था 700 टन्स, तो W की जगह आप वेट ऑफ ट्रेन लेंगे, तो आंसर जो आएगा 2800 kg आएगा, ठीक है ना, आंसर आएगा kg में। तो आपको जो आंसर, अब देखिए यहाँ पे ये आप बोलोगे कि ये आपने टन्स में लिए हो, लेकिन यहाँ पे आइए फिर, ये देखिए kg पर टन, क्वेश्चन में फॉर्मूला इस तरीके से बना गया है kg पर टन, इसलिए वो जो आंसर आएगा आपका वो kg में आएगा, ठीक है। ये जो आंसर आएगा वो kg में आएगा। तो ये जो टोटल आंसर आ रहा था 2800 kg, मतलब कितना, 2.8 टन्स। तो इसका मतलब आपने 3 रेजिस्टेंस जो दिया था वो तीनों आपने निकाल लिया यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, आपको एक वैल्यू और उसने दिया था, एक्चुअली में आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक्चुअली क्वेश्चन में उसने पूछा था आपको ग्रेडियंट के बारे में, है ना, ग्रेडियंट के बारे में पूछा था आपको। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था ग्रेडियंट के बारे में। एक सेकेंड ना, ये देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो ग्रेडियंट के बारे में था, ठीक है। अब ग्रेडियंट निकालना है आपको एक्चुअली, और आपको एक चीज़ और मेंशन है जो हम यहाँ पे दी गई है, वो है ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ लोकोमोटिव। हम इसी के हेल्प से ग्रेडियंट निकालेंगे। कैसे, देखिए ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ लोकोमोटिव इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रैक्टिव एफर्ट इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो हॉलिंग कैपेसिटी, यानी कि आप इसकी जगह टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो या हॉलिंग कैपेसिटी बोल सकते हो। तो इसका फार्मूला क्या था, रोलिंग रेजिस्टेंस यानी कि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस प्लस वेलोसिटी रेजिस्टेंस, इसका मतलब होता था ऑसिलेटिंग रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट। ये हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमको ग्रेडियंट पूछा है उसने, इसका मतलब ट्रेन तो ग्रेडियंट पे से जा रही है, इसलिए तो ग्रेडियंट के बारे में पूछा है, स्टीपेस्ट ग्रेडियंट पूछा है। तो क्या करोगे, सिर्फ ट्रैक्टिव एफर्ट, जो टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट है वो कैसा निकलता था, रोलिंग, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, वेलोसिटी रेजिस्टेंस यानी कि मैंने आपको बताया था ऑसिलेटिंग बोल सकते हो उसको, प्लस रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट। तो ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ लोकोमोटिव ऑलरेडी गिवन है, देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ लोकोमोटिव 15 टन्स, ठीक है ना, 15 टन्स ऑलरेडी गिवन था, तो इसकी वैल्यू रख दिया 15। रोलिंग रेजिस्टेंस हमने अभी निकाले थोड़ी देर पहले, रोलिंग रेजिस्टेंस जो आ रहा था वो आ रहा था, टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस जो आ रहा था 1.58 टन्स आ रहा था, ठीक है। तो 1.58 लिए, उसके बाद वेलोसिटी रेजिस्टेंस जो हमने निकाले वो आ रहा, उसके बाद आपने वैल्यूज, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट किए, और आपको अननोन सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है वैल्यू जी की, यानी कि ग्रेडियंट की वैल्यू। तो ग्रेडियंट के फॉर्मूले में ही आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना, W इंटू जी। तो W की जगह वेट ऑफ ट्रेन है, ये आपको पता है 700 आया था, अभी हमने निकाले, मल्टीप्लाइड बाय जी, यानी कि आपको एक्चुअली में जो चाहिए था वो जी ही चाहिए था, जिसका आंसर आ रहा है 1/66, ठीक है,
1/66 आ रहा है आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया 1/66। जी की वैल्यू निकालना था, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यूज़ काफ़ी सारी इसमें दी गई थी, थोड़ा सा अलग तरह का न्यूमेरिकल था बट इजी था जो भी था। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट टाइप से न्यूमेरिकल थे ट्रैक्टिव एफर्ट में वो हमने कर लिए, बट अगर आपको लगता है कुछ और तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपने कहीं देखे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए इसके बारे में। ठीक है, ये मेरे ख्याल से तो ये 4 न्यूमेरिकल सफिशेंट है आपके लिए। तो अगर आपको नहीं समझा है तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट का पार्ट था ना, देखिए फर्स्ट यूनिट में जो पार्ट आपका आ रहा था उसको हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। फर्स्ट यूनिट में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइंस था, ठीक है ना, ट्रैक के स्टैंडर्ड्स के बारे में था, MG BG ट्रैक, नैरो गेज ट्रैक। उसके बाद ट्रैक्शन, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस क्या था, हॉलिंग कैपेसिटी, ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ लोकोमोटिव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन, ये सब के बारे में हमने पढ़ लिए थे। फिर हमने परमानेंट वे के बारे में पढ़े थे, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है परमानेंट वे, पढ़ाया था। गेजेस के बारे में हमने पढ़े थे। ठीक है, कोनिंग ऑफ व्हील हमने कवर कर लिए। अभी फर्स्ट यूनिट से जो चीज़ बची है वो सिर्फ स्ट्रेसेस इन रेलवे ट्रैक और हाई स्पीड ट्रैक, ये 2 चीज़ के बारे में हमको सिर्फ पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट इसका छोटा है। फर्स्ट यूनिट में मैं आपको बता रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल करना है अच्छे से, उसके बाद कोनिंग ऑफ व्हील पढ़ना है अच्छे से, परमानेंट वे के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, बाकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जो मैंने नाम लिया ये है। ठीक है, तो बाकी के जो हमारा बच गया है स्ट्रेसेस इन रेलवे ट्रैक और हाई स्पीड ट्रैक, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट अभी ओवर है। ठीक है।